ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଠାରେ ଥିବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଜୀବ ଜଗତ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପରିବେଶ ବିନା କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ କିଛି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନୋଟ୍ ଆକାର କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆପଣ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଉପକ୍ରମ। ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତା ବିଷୟରେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ମିନିଂ ବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏହାର ଉପକ୍ରମ କ'ଣ, ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆগে। ଦ ଲିଟେରାଲ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା? ଦ ଲିଟେରାଲ୍ ମିନିଂ ମାନେ ପରିବେଶ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ। ଲିଟେରାଲ୍ ସାଧାରଣତଃ କହିଲେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ ପରିବେଶ କହିବା। ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେକୌଣସି ଜମି ହେଉ, ଘର ହେଉ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ହେଉ, କିମ୍ବା କଲେଜ ହେଉ, କିମ୍ବା ନଦୀ ହେଉ, ସମୁଦ୍ର ହେଉ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ପରିବେଶଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମେ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ମିନିଂ କଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଜାଣିଲେ ତା ଆମେ ଭିତରକୁ ଗବେଷଣା କରିବା। ମିନିଂ ବା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ଯେପରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଆସି ଯେ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସି ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଛି, ସେହିପରି ମିନିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେ କେଉଁଟା ଅଛି? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଏନଭନ୍ ଆଇଛି। ଏନଭନ୍ରୁ କ'ଣ ଆଇଛି? ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଇଛି। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେ ଆଇଛି କ'ଣ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏନଭନ୍ରୁ ଆଇଛି। ସରି, ଏନଭନ୍ରୁ ଆଇଛି। ଏନଭନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଟିଦେଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ENVIRON, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଇଛି। ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି? ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଇଛି କେଉଁଥିରୁ ନା ଏନଭନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼। କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା? ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ବା ଏନସର୍କଲ୍। ଏନସର୍କଲ୍ ଆମ ଚାରିପାଖ, ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମ ଚାରିପାଖ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଆ ଯେଉଁ ଚାରିପାଖକୁ ବୁଝାଏ କ'ଣ? ଇନସର୍କଲ୍ ବା ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ଏହାକୁ ବୁଝାଏ କ'ଣ? ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ବା ଏନସର୍କଲ୍। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏନଭନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼, ସରାଉଣ୍ଡ ବା ଏନସର୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଗଲା ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ କାହାଠୁ ଆସିଛି ନା ଏନଭନ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏନଭନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର ସରାଉଣ୍ଡ ବା ଏନସର୍କଲ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ସେ ମିନିଂ ସେ ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଡସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅସ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ସେହି ହେତୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ସେହି ହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବସ୍ତୁ, ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି, ଆମର ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଜୀବଜଗତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। କଲେକ୍ଟିଭ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବଜଗତ ହେଉ, ତା ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଆମେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ମାନେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେକୌଣସି ଘର ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ନାଳ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପର୍ବତ ଅଛି, ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପରିବେଶ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା।
एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एलिमेंट्स कहले ए जो आम एलिमेंट्स कहले आम जानी एलिमेंट्स कहले कौन ना एलिमेंट्स कहले आमर उपादान 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 कौन माने एलिमेंट्स उपादान कहले आम कहले ता भीतर कौन सब अच्छी क्यों सब उपादान हो जेपरी जोटे कौन जो नहीं जिनसटी सृष्टि होता है माने क्यों क्यों जिनस नहीं परिवेशटा सृष्टि तो कहले प्रथम कौन है फिजिकल एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट गोटे है भौतिक बा वस्तुगत एनवायरनमेंट आउ जैविक एनवायरनमेंट गोटे जेहेतु भौतिक कहले वस्तुगत कहले कौन वस्तु निर्जीव जिनस को नहीं बुझाऊत जोटा कहला फिजिकल एनवायरनमेंट बायोलॉजी जीव जगत जो भित्तिक जोटा कहला कौन कहला ना आमर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चल जी देखा फिजिकल कौन बायोलॉजिकल कौन फिजिकल एनवायरनमेंट कहले आमर बुझाए कौन भौतिक बा वस्तुगत 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 परिवेश वस्तुगत परिवेश कहले आम फिजिकल एनवायरनमेंट को बुझाई थाए कौन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज द एबायोटिक एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट कहले भौतिक एनवायरनमेंट कहले कौन क्या बुझे ना अबायोटिक अबायोटिक माने निर्जीव नॉन लिविंग माने जीवन ना ताको बुझे सपोज जपरी आम कह जल आम अच्छी जो आम परिवेश कहले आम निहत बुझुते मुझे पूर्व कही सारी कौन आम समुद्र पहाड़ एम सब जीवन अच्छी कि ना जेहेतु ना आमर ये सब कौन है आमर फिजिकल एनवायरनमेंट जेपरी है आम जल जल हेब जल समुद्र पोखरी नाल हद पड़िया ये सब भूमि ये सब कौन है आमर फिजिकल एनवायरनमेंट कारण एनवायरनमेंट आमर सब कारण एनवायरनमेंट आम चारिपार्श्व को नहीं गठित ना जेहेतु आम एनवायरनमेंट चारिपार्श्व नहीं गठित सब कौन समस्त जीवन अच्छी कि किसी जीवन ना जेपरी आम पहाड़ कहवा पर्वत कहवा नदी कहवा नाल कहवा अन्य सब एसेटा एसेटा जी सब रहिले सब जीवन ना किंतु से आम चारिपटे रोचंती तेणु कहगला जो से मान कह कौन फिजिकल एनवायरनमेंट वस्तुगत परिवेश क्या कह जार जीवन ना कि आम चारिपटे रोचंती उदाहरण स्वरूप किए ना नदी हद हद पड़िया पड़िया जमी एसेटा ये जो सब रहिले ये तो कौन कहला कहमर फिजिकल एनवायरनमेंट बा वस्तुगत परिवेश तापर जा ये मुझे उदाहरण मत दे देखिए देखो द फिजिकल एनवायरनमेंट कंपेयर टू द फिजिकल एनवायरनमेंट कंपेराइजेस वाटर कहले कंपेराइजेस अंतर्भुक्त फिजिकल एनवायरनमेंट किए रोची ना लैंड भूमि रोची जल रोची एसेटा जो अन्य सब ये सब कौन है आमर रोचंती क्या आमर फिजिकल एनवायरनमेंट पर जा परवर्ती कौन देखिए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बायोलॉजी कौन है जैविक परिवेश कौन है आमर जैविक परिवेश आमर कौन बुझाए ना बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मत बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मत बहुत गुरुत्वपूर्ण रही प्रथम कौन द एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज बायोटिक एनवायरनमेंट और लिविंग एनवायरनमेंट कौन है ये जो एनवायरनमेंट परिवेश कौन कहला ना बायोटिक बा जैविक बा सजीव सजीव बुझे जहाँ जीवन अच्छी कौन है द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस फ्लोरा एंड फौना फ्लोरा माने कौन प्लांट्स फौना माने एनिमल्स अदर ऑर्गेनिज्म अन्य जीवजंतु गुड़िक कौन है आम जो प्लांट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छी आम जो जैविक परिवेशटा अच्छी ये कौन है फ्लोरा फ्लोरा कहले कौन है ना प्लांट्स वृक्ष गुड़िक बुझे आम कही चारिपटे देखो आम वृक्ष गुड़िक आम चल प्रचल न कले छोट बड़ हो पारे जीवन अच्छी तेणु से जैविक अंतर्भुक्त हेले कौन वैज्ञानिक कहला कौन फ्लोरा तब कौन फौना फौनार अर्थ कौन एनिमल जिते सब एनिमल्स रहा जीव जो रही प्राणी मान रही से कौन कहला फौना ये मैंने कौन है बायोलॉजिकल प्रथम फिजिकल वस्तुगत किए नदी नाल पोखरी जल इत्यादि भूमि इत्यादि कहला कौन आम फिजिकल एनवायरनमेंट
बायोलोजी किए रहिले वृक्ष वृक्ष रहिले प्राणी जगत रहिले इत्यादि हरु कोन हला हमर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपण कांसेप्ट बुझी पाइले एलिमेंट्स बुझी पाइले आपण ए निश्चित भाव लिखि पारे चाहिए नोट नहीं पारे लिखिपार वीडियो जो स्किप करी ए पॉइंट को लिखिदेवे मुझे आपन लिखी परवर्ती हो देखा कौन है एनवायरनमेंट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स कौन है मुख्यतः बृहत्तर भाव में आम एनवायरनमेंट मुझे 4 भाग विभक्त कर कौन आम जाचु कौन से गुटे है ना लिथोस्फियर 1 नंबर पॉइंट किए रहा आमर लिथोस्फियर रमर हाइड्रोस्फियर रटमोस्फियर लिथोस्फियर कौन अश्ममंडल बा जोटा भूतत्व विषय आमको ज्ञान दब तापर हाइड्रोस्फियर कले बारीमंडल बारी जल उपर आमको ज्ञान दब आत्मोस्फियर कौन ना आत्मोस्फियर जो वायुमंडल उपर ज्ञान देव देन कौन है इकोलोजी और बायोस्फियर इकोलोजी बा परिवेश विज्ञान बा जीवमंडल बा जैव मंडल को बुझाई थाए सेकेंड कौन आसो ना बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जैव विविधता तापर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड देयर मैनेजमेंट लाइक पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी आर लॉस एंड क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन क्लाइमेट चेंज कौन आग सब मुझे परवर्ती वीडियो नहीं आसबि निश्चित भाव आपण आ एनवायरमेंट इश्यू जो आम 4 नंबर पॉइंट जो देछि एनवायरमेंट इश्यू आम परिवेश एनवायरमेंट जो अच्छी आम जो परिवेश जो अच्छी को असुविधा होउजी परिचालन करवा ठीक होउजी नहीं पॉल्यूशन प्रदूषण अधिक मात्रा होउजी किपरि बायोडाइवर्सिटी नष्ट होउजी बा जैव विविधता क्षति होउजी आकु सब कौन आमर 4 नंबर पॉइंट अच्छी लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर ये सब गोटा मुझे निश्चित भाव नहीं आसबि लिथोस्फियर अच्छी पॉइंट गुड़ा अच्छी लिथोस्फियर किसी अल्प अल्प पॉइंट अच्छी परवर्ती वीडियो या अधिक मात्रा आने चेष्टा करी प्रथम लिथोस्फियर लिथोस्फियर कौन लिथोस्फियर हूँ भूगोलक भूसंबंधी जोटा आम असम जोटा आम असमंडल रूप कही था जेनेराली लिथोस्फियर कॉल्ड अबाउट लैंड और सॉइल भूमि और माटी विषय जो विषय ज्ञान देता है आम कौन कहते लिथोस्फियर कह लिथोस्फियर आम भूत शिला हारिया विषय आम जापारि था आग्नेय शिला कौन कोर कौन या विशेष ज्ञान लिथोस्फियर पाई था लिथोस्फियर ऑल्सो नोन एज जियोमोर्फोलॉजी रूपे लिथोस्फियर परिचित अटे अब सेकेंड जीवा परवर्ती को हाइड्रोस्फियर कौन है हाइड्रोस्फियर अर्थ आम कह कौन ना हाइड्रोस्फियर अर्थ आम हूँ कौन जो आम जो अच्छे आम बारीमंडल को हाइड्रोस्फियर कहुए जब लिथोस्फियर गला अश्ममंडल तापर बारीमंडल आम जानते आम तुम क्वेश्चन है आमर केतोटी महासागर रही क्यों महासागर बड़ अटे आपड़ या कमेंट कर निश्चित भाव जनइबे हाइड्रोस्फियर विषय आम जाना दिस ऑल्सो कॉल्ड अबाउट ऑन वाटर जेहेतु बारीमंडल माने से बारी बारी अर्थ कौन जल तेणु कौन हाइड्रोस्फियर मुख्यतः कही था क्या जल उपर आमको कही था कि हाइड्रोस्फियर कार्य कौन हम ना जल विषय आमको जनइब कौन हम जल विषय आमको जनइब किए हाइड्रोस्फियर हाइड्रोस्फियर आम के महासागर अच्छी क्यों महासागर बड़ कि आम के उपकार्य को विषय हाइड्रोस्फियर कार्य जनइब एंड वी ऑल्सो कॉल्ड अबाउट ओसेनोग्राफी आपको कौन कहुए ओसेनोग्राफी परीक्षा पढ़ी पारे ओसेनोग्राफी क्यों विषय को जन था ना हाइड्रोस्फियर विषय जी जन ओसेनोग्राफी कहुए आप निश्चय भाव बुझीपे परवर्ती परवर्ती वीडियो 1C आत्मोस्फियर अर्थ कौन वायुमंडल कौन कहुए आत्मोस्फियर ऑल्सो नोन एज एआर परि आम सरी वायु विषय आम जो अध्ययन कराए कौन कहुए आत्मोस्फियर वायुमंडल विषय जो अध्ययन कराए कहुए आत्मोस्फियर बोली कहुए एंड वी ऑल्सो क्लोड क्लाइमेटोलॉजी और कौन कहुए क्लाइमेटोलॉजी रूपे परिचित प्रथम है कौन आम जान कौन आमर प्रथम कौन पढ़ला आम प्रथम पढ़ले आम लिथोस्फियर सेकेंड आम पढ़ले हाइड्रोस्फियर थर्ड आम पढ़ले आत्मोस्फियर आपको मन रखिए लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड आत्मोस्फियर इज द मोस्ट इम्पोर्टाट बहुत छोट बड़ू आम बड़ा पर्यटन दरकार
ग्रेजुएशन लेवल में फास्ट आमर कंपलसरी विषय अच्छी ता विषय जना तार विषय जना पड़े आम इकोलोजी जोटा रही जोटा बायोस्फीयर से जो पढ़ेमी से बहुत गुरुत्वपूर्ण बायोस्फीयर एम टे भिन्न होता है कारण एम समस्त मिश्रण से सृष्टि होता है कहले अत्युक्ति हेब ना एलिमेंट्स आम जो रहा आमर फिजिकल एलिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन जो सृष्टि हे कौन कहे बायोस्फीयर जैवमंडल जो आम कह केवल आम बुझेबनी लिथोस्फीयर थी आटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर समस्त मिश्रण प्लस ता सहित आम जीव जगत थी सब प्राणी मानू नहीं आम बायोस्फीयर बा जैवमंडल गठित होता है। एवं देखो इकोलोजी परिवेश विज्ञान बायोस्फीयर कौन है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट कंपेयर टू बायोस्फीयर मुझे आग पूर्व कही बहुत छोट बायोस्फीयर जैव जो मंडल जो अच्छी आम जो जैव मंडल अच्छी तापर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहले आम जीव जगत जैविक जो आम परिवेश अच्छी बहुत छोट कारण ये बहुत छोट बहुत तुलन बहुत कम कि आम कारण आम बायोलॉजिकल किए रोज आम बायोलॉजिकल सहित आम तार मतलब फिजिकल आम एनवायरनमेंट रही अच्छी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ओनली बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट ये कौन हुए बायोटिक होता है अबायोटिक होता है बायोटिक कहले कौन है जैविक सजीव होता है आउ निर्जीव होता है किए आमर बायोस्फीयर आमर गुड़िक थाई बायोस्फीयर कहले जीव मंडल तापर कौन बायोस्फीयर कौन हम इक्वल टू कौन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट मैंने भौतिक परिवेश ता सहित आमर जैविक परिवेशर संगठन बा मिश्रित कौन हुए जैवमंडल सृष्टि हुए माने जैवमंडल कहले आम सारा विश्व एक प्रकार परिवेश ही आम बुझे था बायोस्फीयर एवं आमर फिजिकल स्फीयर सॉरी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट जो मिश्रण सृष्टि होता है कौन बायोस्फीयर आमर सृष्टि होता है तार ये कॉन्सेप्ट आम जानवा कौन इकोलोजी कौन मीनिंग ऑफ इकोलोजी इकोलोजी अर्थटा कौन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलोजी कौन है आम जो है परस्पर सहित जीव परिवेश संपर्कर अध्ययन को परिवेश विज्ञान कहुए कौन है द स्टडी स्टडी माने जो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन एंड अनदर ये जो है परस्पर सह जड़ित जीव एवं परिवेशर जीव सहित परिवेश जो संपर्क विषय आम जो अध्ययन करता शिक्षा ग्रहण करता आम इकोलोजी कही था परिवेश विज्ञान कहुए बुझीपारे इकोलोजी क्या कहुए जीव सहित परिवेश कौन संपर्क अच्छी ता विषय जानापी आम जो अध्ययन करता शिक्षा ग्रहण करता आम इकोलोजी कहुए सांग मैंने ये मोर प्रथम पार्ट था द्वितीय पार्ट मुझे अधिक किसी आनी आप मो भिडियो इनफर्मेटिव बहुत जानी बहुत सूचना पाई तेज मो भिडियो निश्चित भाव लाइक करेंगे लाइक करने भूलिए ना जदि अधिक जानते चाहते मो भिडियो मत सब्सक्राइब करेंगे मो चैनल केतक इम्पोर्टाट नॉलेज सब मुझे मत जानी दर्शाई अच्छी आप भल लगे छोट भाई या बड़ भाई हिसाब से मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करने भिडियो भूलिए ना जय जगन्नाथ थैंक यू फॉर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो आम देखा जय जगन्नाथ जय श्री राम।